Hi friends, this is your ANR sir. Today I have come up with a new concept in general English. In all competitive examinations we find at least one question carrying 5 marks of this concept. It is verb forms. It is verb forms. In this type of questions, a blank is given followed by four alternatives. The candidate is required to choose the correct verb form that suits according to the tense. Let me repeat. In this type of questions, a blank is given followed by four alternatives. The candidate is required to choose the right verb form that suits according to the tense. Here is your first sentence. I dash 17 on my next birthday. I dash 17 on my next birthday. Here are your four options. A. Am. B. Is. C. Will be. D. Was. A. Am. B. Is. C. Will be. D. Was. Your right option is C. Will be. आपका सही जवाब C. Will be है क्योंकि ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे उसकी मतलब मेरा बर्थडे अभी नहीं आया है, आने वाला है, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर में मेरा बर्थडे फ्यूचर में आने वाला है। तो फ्यूचर में आने वाला वाक्य को हम सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। आई विल बी 17 ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। Here is your second sentence. Sidhu dash to be a doctor. Sidhu dash to be a doctor. Here are your four options. A. Wants. B. Want. C. Wanting. D. Wanted. A. Wants. B. Want. C. Wanting. D. Wanted. आपका सही जवाब ए। आपका सही जवाब ए, वांट्स, क्योंकि सिद्धू आशा करता है डॉक्टर बनने के लिए। जो हम आशा करते हैं उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। सिद्धू थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। V5 का मतलब वर्ब को S जोड़ते हैं, V1 फॉर्म को S, यानी वांट, वांट्स। सिद्धू वांट्स टू बी ए डॉक्टर इज द राइट आंसर। नाउ हियर इज योर नेक्स्ट सेंटेंस। इफ आई स्टार्ट एट वंस आई डैश बाय 8 o'clock. If I start at once, I dash by 8 o'clock. Here are your four options. A. Reached. B. Reaches. C. Reaching. D. Will reach. A. Reached. B. Reaches. C. Reaching. D. Will reach. Your right option is D. आपका सही जवाब ऑप्शन डी है, विल रीच, क्योंकि दिया गया वाक्य इफ क्लॉज में है। इफ क्लॉज में अगर एक वाक्य हो तो, अगर एक क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो दूसरा क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। सो दिया गया वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इफ आई स्टार्ट, इसलिए दूसरा क्लास का वर्ब सिंपल फ्यूचर टेंस में होना चाहिए, विल रीच। इफ आई स्टार्ट एट वंस, आई विल रीच बाय 8 o'clock.
Your next sentence is, I think that they dash tomorrow morning. I think that they dash tomorrow morning. Here are your four options. A. Will arrive. B. Arrives. C. Arrived. D. Arrive. A. Will arrive. B. Arrives. C. Arrived. D. Arrive. आपका सही जवाब है ए. विल अराइव, क्योंकि वह सोच रहा है क्या है, कब के बारे में, कल सुबह के बारे में. वे कल सुबह आएंगे, कल के बारे में, उसकी मतलब फ्यूचर टेंस. आई थिंक दैट दे विल अराइव टुमारो मॉर्निंग, होने वाला क्रिया, इसलिए सिंपल फ्यूचर टेंस विल अराइव. Your next sentence is, when the teacher entered the class, Raja dash on the blackboard. When the teacher entered the class, Raja dash on the blackboard. Here are your four options. A. Write. B. Wrote. C. Was writing. D. Written. A. Write. B. Wrote. C. Was writing. D. Written. आपका सही जवाब है C. Was writing. आपका सही जवाब C. Was writing, क्योंकि जब दो क्लॉजेस को when के साथ या while के साथ जोड़ा जाता है, तो अगर एक क्लॉज में पास्ट सिंपल पास्ट टेंस हो तो दूसरा क्लास में पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए. अगर दो क्लॉजेस को व्हेन या व्हाइल के साथ जोड़ा जाता है, तो अगर एक क्लास का टेंस सिंपल पास्ट हो तो दूसरा क्लास का वर्ब का टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए. When the teacher entered the class, सिंपल पास्ट में है. राजा was writing on the blackboard, पास्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए. So when the teacher entered the class, Raja was writing on the blackboard. Here is your next sentence. He always dash to prove that the earth revolves round the sun. He always dash to prove that the earth revolves round the sun. Here are your four options. A. Tries. B. Tried. C. Is trying. D. Will try. A. Tries. B. Tried. C. Is trying. D. Will try. आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. ट्राइस. आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. ट्राइस, क्योंकि दिया गया वाक्य में ऑलवेज, टाइम मार्कर ऑलवेज है. ऑलवेज का मतलब हमेशा. जो कार्य हम हमेशा करते हैं उस कार्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब के साथ लिखेंगे. सो ही ऑलवेज ट्राइज. ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा. सो ही ऑलवेज ट्राइज टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. So here is your next sentence. He saw me by chance and dashed the car. He saw me by chance and dashed the car. Here are your four options. A. Stop. B. Stopped. C. Stops. D. Is stopping. A. Stop. B. Stopped. C. Stops.
डी इज स्टॉपिंग। आपका सही जवाब बी स्टॉप्ड है। आपका सही जवाब बी स्टॉप्ड, क्योंकि ही सॉ मी सिंपल पास्ट में है। वाक्य सिंपल पास्ट में दिया गया है, ही सॉ मी। और दो वाक्यों का हम एंड के साथ जोड़ते हैं, इसलिए एंड के साथ जो क्लॉज फॉलो करता है वह भी सिंपल पास्ट में ही होना चाहिए। क्या है? दिया गया वाक्य सिंपल पास्ट में है। कैसा पता चला? ही सॉ मी, सॉ वी2। और इस वाक्य को हम एंड के साथ जोड़ते हैं, इसलिए आने वाला क्लास में भी वर्ब सिंपल पास्ट में होना चाहिए, स्टॉप्ड। ही सॉ मी बाय चांस एंड स्टॉप्ड द कार। Here is your next sentence. How many pages of homework dash yesterday? How many pages of homework dash yesterday? Here are your four options. A. You have completed. B. Were you completing? C. Did you complete? D. Do you complete? A. You have completed. B. Were you completing? C. Did you complete? D. Do you complete? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, डिड यू कंप्लीट, क्योंकि दिया गया वाक्य में एस्टरडे है, पास्ट टाइम मार्कर। पास्ट टाइम मार्कर एक सेंटेंस में हो तो उस वाक्य को सिंपल पास्ट में लिखना चाहिए। इसलिए आपका सही जवाब डिड यू कंप्लीट। हाउ मेनी पेजेस ऑफ होमवर्क डिड यू कंप्लीट एस्टरडे?